Welcome to the yet another session on computer. The topic of today's discussion is analog to analog conversion. Analog to analog conversion means now we have analog data and we need to convert the analog data to the analog signal. So it means converting the analog data to analog signal is called analog to analog conversion. अब पॉइंट ये है कि अब ये एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन करने की जरूरत क्या है. नाउ सपोज द सेंड वी हैव टू मशीन्स, नंबर 1 and number 2. Now let's assume that both the machines are analog in nature. So it means they produce the data, they store, they produce the data in, or they process the data in analog form. जैसे for अपनी voice हो गई, कोई voice recorder हो गया, या सपोज कीजिए कोई रियल टाइम वॉइस डिवाइस है. आप तो जो आपकी वॉइस होती है दैट इज बेसिकली एनालॉग सिग्नल. फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो कम्युनिकेशन है आपकी, तो वो एक तरह से आपका एनालॉग डिवाइस है. तो द पॉइंट इज व्हाट इज द नीड ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल. सो द machines that wants to exchange the data are analog in nature. They produce the analog data, and the transmission media that is connecting these computers are also analog in nature, because the transmission media cannot carry the data. We need the data into the signal. So in this, the machines process the analog data, and the connecting line is also analog in nature. So we need to convert the analog data to analog signal. The process of converting analog data to analog signal is called analog to analog conversion. तो चलिए अब देखते हैं क्या प्रोसेस है और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन कर सकते हैं. सो दिस स्लाइड shows the process of analog to analog conversion. Now we have input as analog. जो हमारा input है that is a analog data, and we have an analog to analog conversion process, and your output will be analog signal. तो अब फिर से वही चीजें यूज होंगी आपकी, क्योंकि तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनालॉग सिग्नल के: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज. So what we will be doing now, the change in signal will be represented by using change in one of these three things: amplitude, frequency and phase. So we have three techniques that are used to convert the analog data to analog conversion. The first one is analog modulation, the second is frequency modulation, and the third one is phase modulation. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या है ये तीनों प्रोसेस और ये कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं टू परफॉर्म दीज टाइप्स ऑफ conversion. So let's start with the amplitude modulation. So in amplitude modulation, this is the actual input, this is the actual signal or data that is generated. Now to transmit this,
what we will be doing, we will add the carrier frequency. अब कैरियर सिग्नल क्या होता है? कैरियर सिग्नल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. कैरियर सिग्नल या कैरियर फ्रीक्वेंसी इज अ हाई फ्रीक्वेंसी that is used to transport the actual data from one place to the other place. Now you can observe that in actual input or modulating signal, the signal that we want to convert is in the analog form. The amplitude of the signal is changing. Obviously it will change, no doubt about that. So what we will be doing, we will add the carrier frequency to this modulating signal and the output will be a amplitude modulated signal. तो हमने कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी, कांस्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी. अब कांस्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट विल बी डबल. ये डबल होगी. जितनी फ्रीक्वेंसी आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की होगी उससे डबल होगी कैरियर फ्रीक्वेंसी. इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे एंड द आउटपुट विल बी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. आप देख सकते हो कि आपने कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी टू वेरिंग एम्पलीट्यूड सिग्नल. तो उसमें क्या हुआ? आपके पास वेरियस एम्पलीट्यूड्स आ गए. That represents the various types of the signal, various type of the data. This process is called amplitude modulation. The second is frequency modulation. So again, the modulating signal will be having the varied amplitude. Amplitude तो देखो जी चेंज होएगा ही होएगा. आप देख सकते हो एनालॉग सिग्नल में ये तो कंफर्म्ड है ही है, क्योंकि वेव की फॉर्म होती है. अगर वेव फॉर्म है तो अप एंड डाउन ये चीजें होती रहेंगी, एम्पलीट्यूड तो वेरी करेगा. लेकिन वो जो चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट. मतलब कांस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा. इसका मतलब क्या है कि जो एम्पलीट्यूड का पीक होगा, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो सिग्नल में क्या रहेगी? कांस्टेंट. अब ये नहीं हो सकता कि एम्पलीट्यूड चेंज ही ना हो, क्योंकि एनालॉग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ वेव. तो वेव में ऑब्वियसली अप एंड डाउन्स तो होंगे, तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा, लेकिन जो चेंज होगा दैट विल बी कंसिस्टेंट. इट मींस जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो कंसिस्टेंट होगी. लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऐसा नहीं था. ये जो पीक था, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो कंसिस्टेंट नहीं थी. लेकिन अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अब जो एम्पलीट्यूड की पीक वैल्यू होगी वो कंसिस्टेंट होगी. तो हमारा प्रोसेस फिर से वही रहेगा. मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी को. कितनी कैरियर फ्रीक्वेंसी को? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने डबल करा, इसमें इनटू 10 होगा. इट मींस जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी उससे 10 गुना ज्यादा होगी कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो अब इसमें हम कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को आप देख सकते हो हमने रिप्रेजेंट कर दिया विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी. तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही फिर से जो आपका एम्पलीट्यूड है डिक्रीज हो स्टार्ट हुआ तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी लो हो गई. सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एफएम रेडियो इसको यूज करता है.
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज करता है आपका AM रेडियो। तो अगर आप एक पूरा कंप्लीट रेडियो लोगे तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग आपके पास कैटेगरीज होती हैं, AM, FM, MW। तो ये सारी जो अलग अलग हैं, ये एक्चुअली यही है, ये कन्वर्जन टेक्निक्स ही हैं। कोई स्टेशन है जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज करता है, कोई फ्रीक्वेंसी को करता है। अब पॉइंट क्या है कि कौन सी यूज करेगा, वो डिपेंड करेगा द कवरेज एरिया आपको कितना करना है, कवर करना है एरिया। द थर्ड इज फेज मॉड्यूलेशन। अब फेज मॉड्यूलेशन में आपको पता है कि वी विल बी चेंजिंग द एंगल of the signal with respect to time 0. In this case again, we will be having a modulating signal that will be your input. We will add the carrier frequency को हम एक्चुअल सिग्नल के साथ ऐड कर देंगे, और जो हमारी आउटपुट होगी that will be the pulse modulated phase modulated signal. तो फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आप क्लियर कट देख ही सकते हो कि जैसे ही आपका करियर सिग्नल चेंज होगा, एम्पलीट्यूड जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो जो फेज है यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द फेज, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, दिस इज द फेज, नेगेटिव जाना स्टार्ट हुआ, दिस इज द फेज। So the change in signal is represented by using the change in phase. This type of conversion technique is called phase modulation, converting the analog signal to the analog. So this is the phase modulation. That's it with the presentation. So आज हमने बेसिकली डिस्कस किया मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होता है कि आपको सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना। इससे पहले हम डिजिटल टू एनालॉग कर चुके हैं, एनालॉग टू डिजिटल कर चुके हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज ऑन एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। तो इनपुट भी एनालॉग होती है, आउटपुट भी एनालॉग होती है। हमारे पास 3 तरह की कन्वर्जन टेक्निक्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा उसमें आपका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल नॉट बी कांस्टेंट। तो इसमें हम ऐड कर देंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी को। कितनी कैरियर फ्रीक्वेंसी? 2 गुना कैरियर फ्रीक्वेंसी को, जो हमारी, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड कंसिस्टेंट नहीं था, तो उसमें कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगी उसमें भी आपका एम्पलीट्यूड कंसिस्टेंट नहीं होगा। So the change in signal is represented by using change in amplitude. This process is called amplitude modulation. इसके बाद हमने डिस्कस करा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हुआ, अब सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड की पीक वैल्यूज हैं वो हो गई कंसिस्टेंट, उसमें हमने 10 गुना कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया। तो अब जो हमारी आउटपुट आई दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। द चेंज इन सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। एंड द थर्ड वन इज फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया, हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में फिर से कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया, और अब चेंज इन सिग्नल is represented by using change in phase. This type of conversion technique is called phase modulation. So that's it with the today's session.